Hello friends, I welcome you to Value Investing channel. Today topic will be very interesting for the people who are not sure कि invest कैसे करना है और कहाँ करना है. How to do proper portfolio management in stock markets. ये permanent portfolio क्या होता है? What is the concept and how to build it? This will be sure an eye opener for you regarding doing proper asset allocation. This is the study conducted by the famous analyst, stock analyst हैं Harry Brownie. Do we have any mutual fund जो हमारी help कर सकता है in doing these kind of asset allocation? Well, we will learn everything about this in this video. Friends, always remember one thing. This is a golden rule. Diversification is the key. Diversified portfolio हमेशा ही best रहते हैं when market is volatile. It is the best protection against the swinging fortunes of different asset classes over time. For example, gold के रिटर्न देखते हैं 21% थे in 2019 and it has gone to 31% in 2020. Whereas equity ने दिए हैं सिर्फ 7.4% in 2019 and 10% दिए हैं 2020 में. Debt funds on an average remain reasonably okay because of the falling interest rate. It is at around 8.7% in 2020. So how do we build a proper portfolio? We will learn about everything in this video. So let's begin. So friends, now let us understand what is this permanent portfolio is all about. Permanent portfolio concept was introduced by the famous stock analyst Harry Brownie in his book Fail Safe Investing. उन्होंने बताया था कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगाना है and how to do investment with proper asset allocation with minimizing the risk. There are different types of asset allocation and there are different types of variants. मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे equity है, then we have debt funds, then we have cash and cash equivalents, which are nothing but investing in the company bonds for limited period of time, let's say 3 months, or you can do an overnight funds investment also. अगर आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए हाउ टू डू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट यू प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स so that I can present one more video for to you. Then the last is the commodities, that is gold, which you can invest in, and then it becomes our four major pillars where you can do the proper asset allocation in the market. Now there are different types of permanent portfolios that we can build around it. So the first famous and most renowned one is 25 25 25 25, means doing the 25% allocation in equity, debt, cash and gold. This is known as a PP1, permanent portfolio 1. It is also known as a safe haven, means you will not lose much of your money irrespective of your stock dynamics and the volatility in the market. आपके पैसे हमेशा safe रहेंगे. Other one is the 40 20 20, where you are investing much more in the equity. 40% you are doing in equity, then balance debt, cash and gold you are investing only 20%. This type of permanent portfolio is known as a smart investor, where you have much more hands on the equity. You are a risk taker and you feel like okay, you want to invest much more in equity to gain more returns as compared to the other stock variants. So you can choose this as a PP2. It all depends on the risk taking ability of the investors. There could be PP1 and PP2. As per me, I feel much more comfortable as PP2. But if you are like aging at around 40 or above, for you safe haven would be the best way of doing the permanent portfolio and the asset allocations. फ्रेंड्स नाउ आई ब्रॉट यू द परफॉर्मेंस ऑफ द परमानेंट पोर्टफोलियोज. हम इसके बारे में अभी हम समझते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ऑन द इक्विटी के रिटर्न्स कैसे रहे हैं. 2006 में देखिए 40% के रिटर्न्स थे. 2007 में इंक्रीज हो गए अराउंड 58% के पहुंच गए हैं. जैसे रिसेशन आया ये डिक्लाइन किया है. यहाँ पे देखिए कैसे नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अराउंड -55%. एंड देन उसके अगले साल ही रीबाउंड होता है. देखिए कैश कैसे इसके इक्विटी के रिटर्न्स 90% तक उसने ऊपर के रिटर्न्स दे दिए. फिर अगले साल मतलब नीचे की तरफ आता है अराउंड 22% के अराउंड. फिर 2011 में फिर नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं -22% के अराउंड. फिर 2012 में फिर ऊपर की तरफ जाता है 30% के अराउंड. देन उसके बाद फिर अगले साल फिर नीचे आता है अराउंड 5% के अराउंड. फिर 2014 में फिर ऊपर की तरफ जाता है 45%. अब देखिए कैन यू सी द swing, can you see the volatility of the equity?
कैसे ऊपर की तरफ नीचे जाता है एंड देन फिर ऊपर जाता है फिर नीचे। ऐसे हाई वॉलेटिलिटी में जो इन्वेस्टर होते हैं दे ऑलवेज फील अफ्रेड should they invest or not, or should they wait it, because this kind of returns will always create a panic amid all the investor to do the investment। तो ये इक्विटी के रिस्क के साथ साथ काफी सारे ये challenges भी हैं in terms of volatility। Now we will talk about the debt funds। Debt funds on an average has remained stable throughout this year tenure। यहाँ पे देखे अराउंड 4.4 to 5% के रिटर्न्स थे। अगले साल 2007 में थोड़े से बढ़े, फिर उसके बाद अराउंड 10% 2008 में पहुंच गए, फिर उसके बाद थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं 2009 में। अराउंड दैट्स इट, दिस इज हाउ द ग्राफ इज मूविंग अराउंड 5 to 8% के अराउंड यहाँ पे डेट फंड्स ने अपना ऑन एन एवरेज के रिटर्न्स दिए हैं। Cash equivalents, if you ask me, has given little bit better than the debt funds। 0.5% के यहाँ पे betterment दिए 2006 में, 2007 में अराउंड स्टेबल रहे हैं, 2008 में 0.5% के अराउंड कम दिए एज कम्पेयर टू डेट फंड्स, और उसके बाद 2009 में अच्छे रिटर्न्स दिए। तो कैश अगर मैं आपको बताता हूँ, ये भी स्टेबल रहा है एज कम्पेयर टू डेट फंड्स, और ये भी इन्होंने भी ऑलमोस्ट अराउंड स्टेबल रिटर्न्स ही दिए हैं कैश फंड्स ने भी। Now we will talk about the gold। Gold is also, like as you know, is fall under commodity range। तो इसने भी थोड़ा सा behave थोड़ा सा different ही किया है। It is not as stable as what we expected because it all depends upon the demand and supply in the commodity range। यहाँ पे गोल्ड के रिटर्न्स देखते हैं 20% के थे 2006 में, then 2007 में भी अराउंड सेम रहे हैं, 2008 में इंक्रीज करके अराउंड 24% के अराउंड, then till 2011 22 to 23% के रिटर्न्स आए हैं। 2012 में अराउंड इसके 25% के अराउंड पहुंच गए थे 11 में, एंड देन उसके बाद ये रिटर्न्स नीचे की तरफ ही गए हैं। देखें, इट हैज़ नॉट ग्रोन मच एज ए गोल्ड के रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं -5 to -8% के अराउंड टिल 2005 में, और थोड़े से प्लस साइड में गए 2018 में +5% के अराउंड। 2019 to 2020 यहाँ पे इन्होंने गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है 21% एंड देन 31%। यहाँ पे रिटर्न्स गोल्ड के अच्छे हुए हैं। अदरवाइज अगर मैं देखूँ 2012 to 2018 it has been a sloppy year for gold also in terms of giving the returns। Now you could see the volatility that I have explained you। इक्विटी के तो ऐसे रिटर्न्स गए हैं ऊपर नीचे which can create a panic amid all the investors। और डेट एंड कैश के जो रिटर्न्स थे वो ऑलमोस्ट sluggish रिटर्न्स थे अराउंड 5 to 6% जो कि हमें एफडी के रिटर्न्स के साथ मिल सकते थे। एंड गोल्ड के रिटर्न्स हैज आल्सो बीन डायनेमिक। पहले कुछ 4-5 साल में 22% के रिटर्न दिए, फिर अगले लाइक 2012 से में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दिए, एंड देन पिछले 2 साल में ये बढ़ गया बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गेम। Now I will talk about the portfolios that I wanted to talk about here। Permanent portfolio 1 and permanent portfolio 2। Permanent portfolio 1, you could see this blue line, right? This blue line, we need to follow the blue line here। What is this permanent portfolio is talking about? This blue line you could see on an average has almost remained a constant। ये constant ही रहा है, means it is not like यहाँ पे देखिए, यहाँ इस लेवल तक रिटर्न दिए हैं परमानेंट पोर्टफोलियो में जब इक्विटी ने इतने हाई रिटर्न्स दिए हैं, एंड सिर्फ इतना ही गिरा है, अराउंड -1% गिरा है, वेयर जब इक्विटी गिरा था -5%। तो ये देखिए, ना ये ज्यादा गिरता है और ना ये ज्यादा ऊपर जाता है। तो इट इज लाइक अ सेफ हेवन एंड द लाइन इज ऑलमोस्ट लीनियर irrespective of the how the flow of the market and the volatility of the market is। The pp1 is always constant and it is like giving 25% of your total investment shareholding to each of the stock variants। Now I will talk about the pp2 where you see that equity exposure is higher around 40%। यहाँ पे gap you could see with the blue line is little bit higher। यहाँ पे decrease यहाँ पे जब हुए हैं थोड़े से ज़्यादा decrease हुए हैं, increase भी अगर मैं देखता हूँ थोड़े से ज़्यादा increase हुए हैं as compared to the portfolio 1। तो ये थोड़ा सा gap थोड़ा ज़्यादा रहता है, but still volatility के मामले में if you ask me it's still not bad। यहाँ पे रिटर्न्स PP2 के जो कि थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टर के में पोर्टफोलियो में आ जाता है, स्टिल इसके रिटर्न्स एज कम्पेयर टू PP2 इज लिटिल लोअर, बट आई वुड स्टिल से दैट PP1 PP2 डिपेंड्स ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। I am of the choice of PP2 where I am okay to take a little bit of risk, not as compared to the volatility of the equity as such in totality। And if you are want to go for a safe haven investment, PP1 is better option where the returns are better than compared to the PP2 as on date।
Now we will talk what would be the value of the money that you have invested in this four different asset classes. उसकी क्या वैल्यू निकल के आती है. If you will talk about 10 year ago, अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता यहाँ पे 2010 में, 2020 में वही आपका 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है 246 रुपीज़ बन के आती है. डेट फंड्स में 221 रुपीज़ की बन के आती है. PP1 जो मैंने आपको बताया, परमानेंट पोर्टफोलियो 1 की 221 है, पोर्टफोलियो 2 की 218 है, कैश इक्विवेलेंट्स के अराउंड 210 है और इक्विटी की 206 है. तो आप देख लीजिए पिछले 10 साल में हम हमेशा स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेटर है. इट्स नॉट ऑलवेज द केस. गोल्ड हैज वन इन लास्ट 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू द वैल्यू फॉर योर मनी. अब हम पिछले 15 साल की बात कर लेते हैं. अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, 15 साल के अराउंड 10 year में देखते हैं, देन यू कुड सी जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था 2005 में, गोल्ड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता वो 661 रुपीज़ बन के आ जाता. और इक्विटी में है सेकंड हाईएस्ट विच इज अराउंड 580 रुपीज़. और परमानेंट पोर्टफोलियो 2 इज अराउंड 481, परमानेंट पोर्टफोलियो 1 इज 456. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैज कम डाउन ऑन 292 एंड 290. आपको तो पता ही है डेट और कैश जो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे इसके रिटर्न्स आपको मार्जिनल मिलेंगे अराउंड 5 to 8%. PP1, PP2 is better option in terms of gaining the value for your money. It is also absorbing the risk in the market. आप देखिए मार्केट में कितनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, कितनी वॉलेटिलिटी होती है. तो उससे बचने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करें इधर इन परमानेंट पोर्टफोलियो 1 और परमानेंट पोर्टफोलियो 2. और द अदर गुड थिंग वुड बी टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड. बट गोल्ड को भी मैंने अभी पीछे बताया हैज नॉट ऑलवेज गिवन गुड रिटर्न्स. 2011 to 2018 ने स्लगिश रिटर्न्स ही दिए हैं. अभी 2019 एंड 20 में अच्छे रिटर्न्स के कारण यहाँ पे वैल्यू गोल्ड की ज्यादा आ रही है. सो डोंट गेट just don't close your eyes over here and just follow and doing the blindly invest in gold. Just think and think very analytically over here. Do the critical thinking that okay, I want to invest in these all assets, but at the same time I need to minimize the risk. I should not be over heavily dependent on either gold or equity. So now we will be talking about the permanent portfolios के क्या returns रहे हैं. I have written as a smooth returns. Now we will understand how. पिछले 10 साल की मैं S&P के रिटर्न्स में देखता हूँ. अगर मैं इक्विटी में करता तो मेरे पास 8.21% के रिटर्न आते, डेट में अराउंड 8.73%, कैश के अराउंड 7.25%, गोल्ड के रिटर्न्स अराउंड 10.91% है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 years शार्प इंक्रीज. परमानेंट पोर्टफोलियो एंड परमानेंट पोर्टफोलियो 2 की बात करते हैं. यहाँ पे रिटर्न्स देखें 8.83 एंड 8.71%, which is almost the average of all these returns. अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ही स्मूथ रिटर्न्स हैं, FD से भी अच्छे रिटर्न्स हैं. अराउंड 9% के रिटर्न्स अगर आपको पिछले 10 साल में मिल रहे हैं तो यू आर मेकिंग योर वैल्यू वर्थ. यू आर नॉट डिग्रेडिंग योर वैल्यू, इन फैक्ट यू आर इंक्रीजिंग योर वैल्यू. एट द सेम टाइम अगर मैं पिछले 15 साल की बात करता हूँ, इक्विटी के रिटर्न्स पहुंचते अराउंड 10.53% के, डेट के अराउंड कम है 8.21, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रिमेन्स अराउंड 7.46, गोल्ड के अराउंड 12.28. और यहाँ पे मुझे रिटर्न्स निकल के आते हैं 9.77 इन PP1 एंड 9.92 इन PP2%. तो ये देखिए कितने अच्छे रिटर्न्स आपको निकल के आ रहे हैं परमानेंट पोर्टफोलियो में. एंड दिस इज ऑल अबाउट अब्सॉर्बिंग द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट. हमें सिर्फ एक ही सेक्टर में एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. वी शुड बी डूइंग अ प्रॉपर एसेट एलोकेशन, एंड दिस इज व्हाट माय वीडियो इज ऑल अबाउट, टू टेल यू हाउ टू डू द प्रॉपर एसेट एलोकेशन इन परमानेंट पोर्टफोलियोज टू गेट द स्मूथ रिटर्न्स. सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लो वॉलेटाइल मल्टी एसेट फंड्स. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्या हमारे पास ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमें इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने में, एसेट एलोकेशन करने में हेल्प करेंगे. सो हियर इट इज. सो दीज आर द स्कीम्स दैट इट इज रनिंग, जो कि मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में बताया इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशो. जिसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है वहाँ पे आपके चार्जेस ज़्यादा होते हैं. सबसे सस्ता है 0.59 विच इज़ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट. ये 26% करता है आपके इक्विटी में, डेट में 36% है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 27% है, और कॉमोडिटीज़ में अराउंड 10.5% है. एट द सेम टाइम यूटीआई का देखते हैं. यूटीआई का जो कि सबसे ज़्यादा पैसे चार्जेस कर रहा है आपको, 69% है आपके इक्विटी में एक्सपोजर, 16% है डेट में, 4% है सिर्फ कैश में, और 10% है आपके कॉमोडिटीज में. सबसे हाईएस्ट और सबसे पॉपुलर है ICICI प्रूडेंशियल
मल्टी एसेट कंपनी। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एसेट्स यूज हो रहे हैं, 10,961 करोड़ के यहाँ पे लोगों ने अपने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। और इसका एक्सपेंस रेशो भी देखिए काफी ठीक है, 1.02 एक्सपेंस रेशो है, दैट इज ओके। बट जो मुझे यहाँ पे कंसर्निंग बात लगती है वो है यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर। 72.38% इज वेरी हाई एक्सपोजर इन द इक्विटी। डेट में अराउंड 15% है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बहुत कम है, अराउंड 2%, और कॉमोडिटीज में अराउंड है 11.53%। अगर आपको मुझे पूछना है कि किस में मैं इन्वेस्ट करूंगा, विच वुड बी द बेस्ट वन, सो आई वुड पिक SBI मल्टी एसेट मल्टी एलोकेशन। यहाँ पे 40% है आपका इक्विटी में, 30% है अराउंड डेट है, कैश एंड कैश इक्विवलेंट में है अराउंड 11%, और 20% में है आपके कॉमोडिटीज विच इज अ गोल्ड। एक्सपेंस रेशो यस थोड़ी सी ज्यादा है 1.22, बट स्टिल आई वुड गिव इट गुड बाय कंसिडरिंग द एलोकेशन परसेंट दैट दे हैव पुट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो नेट एसेट मैनेजमेंट है वो भी 255 करोड़ का है, जो कि अच्छा है। सो दीज आर द डिफरेंट स्कीम्स, यू कैन चूज विच एवर स्कीम you feel like would be best for you. This is based on 40-20-20 principle. If you think that you have a low risk taking ability, you can choose around Motilal Oswal, which is around 25, and then this is something on the lowest in terms of risk taking abilities. So friends, आज आपको मजा आ गया होगा after learning what is this permanent portfolio and how to do the proper asset allocation. In fact, I learned a lot while I was reading the book, and when I was creating this presentation or video for you. I really enjoyed it, and I thought of sharing it with you so that you can also learn that how this permanent portfolios can really help you to build a long-term future plan for you with minimizing the risk and volatility in the market. आपकी जो वैल्यू है, जो आपके जो पैसे आपने जो इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो डिग्रेड कभी नहीं होंगे विद टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें माय चैनल, हिट द लाइक बटन, एट द सेम टाइम क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।